Hi everyone, we are back and sorry for the interruption. Now, moving further, that was a great show. Let's talk. And now we are moving ahead to a mobile film category. So, ladies and gentlemen, I'm going to announce the names of mobile film categories. The very first film which we're going to play is Alma from Mexico from director Elizabeth Marlowe. Congratulations, Elizabeth Marlowe. The other film is Durga's Lockdown from India, and the director is Mitesh Take. Congratulations, Mitesh ji. And the third film which we are going to play, and the last film of the day, is Nuovo Cinema Paravirus from Italy, directed by Daniel Pignatelli. So congratulations to the all mobile film categories, and congratulations to all the filmmakers. And let's move ahead. Let's rock the show and get back to the mobile film category. Can we have the movies, please? Okay. Can we have the movies, please? Okay, the very first film I'm going to announce again, Alma from Mexico, Elizabeth Marlowe, in mobile film category, is an opening film in Bollywood International Film Festival of today, 22nd of December. Hoy, uno de esos días en el que ¿y qué nos hace despertar? Al menos en mí, siempre han tenido ese efecto las tardes frías y lluviosas. No somos más que el reflejo de lo que experimentamos y cómo reaccionamos ante ello. Quizá por eso a veces cuestiono si de verdad he vivido todo aquello que he querido. Tengo miedo de un día despertar y verme atrapada en un ritmo ordinario. Y no me refiero a hacer día a día lo mismo, ni tampoco a seguir horarios o rutinas. Eso es cotidianidad, y estoy convencida de que existe una belleza oculta en ello. De hecho, qué feliz sería vivir así. De lo que hablo es de lo ordinario, de lo burdo. Tengo miedo de conformarme con lo que soy, de saberme sin motivos, de perder la pasión. Qué difícil resulta encontrarse un propósito de ser. Hasta ahora, creo que solo he sido una espectadora en la vida de otros, perdida en un más de lo que soy. Pero un día, las cosas serán diferentes. Y todos los sueños que he tenido en tan largos desvelos estarán ahí, puestos para que los tome. Qué hermoso será cuando eso pase. No cometeré errores, ni miraré hacia atrás. Me enfocaré en mirar las estrellas, en distinguir el aroma de las flores, en escuchar las risas, en saborear los más exquisitos manjares, en sentir la vida. Hola. No inventes, se me fue el tiempo. Ahorita bajo. Bye. Porque siempre he pensado lo hermoso que sería vivir.
Beautiful film, and no one could believe that it is shot on mobile. I mean, come on, the resolution, the acting, the performance, everything was so beautiful. So this was Alma from Mexico, directed by Elizabeth Marlowe. A big congratulations to her and her team. So the next film we have for you all is Durga's Lockdown from India, and Mitesh Te is a director. Can we have Durga's Lockdown next on screen? Durga's Lockdown. Congratulations, Mr. Mitesh, and I hope you're watching us. I hope you're watching our film. Ladies and gentlemen, Durga's Lockdown from India, Mitesh Te is a director. Can we have that film, please? Okay. Okay. I think there is something going on behind the screen. I don't know about it. Okay, let's talk about mobile films. The very best part of mobile film is कि यार मोबाइल से फिल्में बना सकते हैं. The best part, you don't even need a heavy camera or something. You just need a story and you have a good phone and you can shoot a mobile film. इसका छोटा सा एग्जांपल हमने अभी देखा अल्मा में. एंड कैन यू बिलीव दिस, मेक्सिको से आई है एलिजाबेथ मार्लो. एलिजाबेथ मार्लो की एक और फिल्म आई थी हमारे पास जो हमने BIFF शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में प्ले करी थी, एंड BIFF से मोबाइल फिल्म कैटेगरी में भी एलिजाबेथ मार्लो जी की फिल्म आई है. सो अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर. उनकी दोनों फिल्में ऑफिशियल सिलेक्शन हुई हैं. Elizabeth Marlowe from Mexico, a big congratulations. And now we are talking about Durga's Lockdown in a mobile film category from India. So it's a story about a woman in a lockdown. Okay.
Wow, that was Durga's Lockdown. Such a short film made with a mobile and a very short, precise message, a very short message and a very meaningful message, guys. Lockdown made domestic violence. Wow. Uh, let's move on to our next film. That is Nuevo Cinema Paravirus. Again, it's in a mobile film category, and it is sent us from Italy. We've got this from Italy, and the director is Daniel Penatelli. So, guys, can we run this, our third film for today in a mobile film official entry? Can we ever have? Noi il cinema vogliamo portare a voi questo momento di contagio e di morti per il virus, purtroppo non è un film. Noi, il cinema, di tutto questo, storie, creavamo mondi, emozioni. Nei film ci si abbracciava, ci si baciava e si faceva l'amore. Quello che fino a poco tempo fa realizzavamo e vi mostravamo sul grande schermo non è più possibile. Le sale sono chiuse, i set sono bloccati e non possiamo più creare nuovi sogni. Non toccare niente. Anche nei nostri film è entrato il nemico e ha tagliato i contatti umani prima che accadano. Rimandandoli a quando tutto questo sarà finito e anche voi vi riabbraccerete. Terribili prove della nostra innegabile solitudine e della costante paura che ci possiede. Siamo rimasti soli. Credo di non essere mai stata così bene in vita mia. Hai avuto paura, vero? La libertà è come l'aria. Ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare.
film with a beautiful message, and it says that freedom is like air and we don't miss it until it's gone. So that was the last film of the day, and in a mobile short film category. So before going, last but not the least, I just want to tell you, I'm just going to run through the films that we have screened today so that all the filmmakers can hear it one more time. So the film which have been screened in BIFF long short film categories are Duggi from India, directed by Sagnik Chatterjee. Bamboo Ballads from India, Sajid Naduthodi is a director. Congratulations. Kukli from India, directed by Shyam Sundar. Congratulations, Shyam Sundar ji. A Guardian Before the Mirror from Colombia, Andre Ricorte and Martin Ramirez. Sorry, we couldn't play your film, but congratulations to you both once again. Defenseless from USA, directed by Xavier Augusto Nunes. Congratulations, Xavier, and big round of applause for you all. Now, the films which we have screened in BIFF short film categories are Click Next to Continue from USA, Abdul Stone Jackson. Congratulations, Abdul. In Tune from Mexico. Congratulations, Elizabeth Marlowe. Gaia from Brazil, directed by our very own Cadu Zergalio. Congratulations, Cadu. And Rebirth of Hitler from India. Congratulations, its director M.S. Tripathi ji. The Living Room from China and directed by Ellie Rose. Congratulations, Ellie Rose. So these are the films which we have screened today in BIFF short film category. And now the films that we have screened in mobile film categories are Alma, Mexico, from Mexico, directed by Elizabeth Marlowe. Congratulations, Elizabeth. Durga's Lockdown from India, directed by Mitesh Tek. Congratulations, Mitesh ji. And Nuevo Cinema Paravirus, the film that we have just saw, the last film of the day from Italy. And congratulations to its director, Daniel Pignatelli. And I'm sorry if I pronounced you wrong. So guys, this was a whole day of celebration, of celebrating cinema, celebrating the legends. And I hope you have enjoyed us as much as we have enjoyed it. और चलते चलते सिर्फ एक बात कहूंगा कि अभी हमें कल फिर मिलना है 22, 23, 24, जिसमें से आज का दिन जा चुका है. कल 23 तारीख है. कल फिर कुछ और बेहतरीन फिल्मों के साथ लॉन्ग शॉर्ट फिल्म और मोबाइल शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में वी आर कमिंग अगेन. तो कल 10 बजे हम आपसे यहीं पर मुलाकात करेंगे एक बार फिर से. एंड वंस अगेन आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू ऑल. जो भी हमारे ऑडियंसेस हैं, आपने हमें देखा, द पेशेंस you have kept while listening to us. We are very humbled, very big round of applause and a very big thank you from BIFF to everybody. And to congratulations to all the filmmakers. आज जिनकी फिल्में स्क्रीन हुई हैं, congratulations to you all guys, and a big thank you and a big love you to all. Stay safe, stay home, मास्क पहन के रखना. Bye bye, ciao. So let's move on, guys. Let's talk. Let's move ahead. और आज की हमारी एक और होस्ट है. I just want to introduce her to you. और मेरी को पार्टनर ओके इस यात्रा में शायद वो अभी लॉग इन नहीं कर पा रही हैं ड्यू टू सम उनके कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से. ओके, इट्स ओके. सो जैसे ही वो हमें ज्वाइन करेंगे आई विल लेट यू नो. एंड बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू से कि आज हम अपनी ज्यूरीज को एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारी जो फाइनल ज्यूरीज हैं वो कौन कौन हैं. मिस्टर दिलीप शुक्ला सर, our very own Dabang. Thank you, sir, for being a jury, Indian film writer and director. Mr. Ashu Trikha ji, Indian film director and producer. Thank you, Ashu sir, very much. Thank you.
Swapna Wagmare ma'am, Indian film writer, director and producer. Thank you ma'am. Ashok Purang sir, Indian film producer and director. Thank you very much sir. Ajay Fansekar ji, Indian film director and has directed many films. Thank you Ajay sir. And last but not the least, our very own Ajay Brahmatma sir, a senior journalist and a film critic. We thank you very much sir from our hearts. आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारी फिल्में देखी और हमें इसमें हेल्प किया. Now before moving on, co-partners को इंट्रोड्यूस करना भी जरूरी है यार. So I just want to introduce Bollywood International Film presents Bollywood International Film Festival in association with Garnet and Gold presents this festival, जिसमें हमारे co-partners हैं Film Freeway, आप नीचे लाइन देख सकते हैं, Three Icons, स्वाइका, अनहद नाथ, पहल, एसलास डिजाइन, घूमले गुरु एंड फिल्म फ्रीवे. अब कुछ और भी रह गया है, अभी खत्म नहीं हुआ. एंड आई जस्ट वांट टू थैंक यू टू ऑल आवर टेक्निकल टीम एंड आई वांट टू नेम देम. योगेश जी, thank you very much. Shefali, thank you very much. And Shubh, thank you very much. And I'm going to thank our managing director, Jacqueline Jindal ma'am. Thank you very much. Our founders, Yashpal sir, Pratibha ma'am, आपके बिना ये possible नहीं था. You have given us this chance. और definitely, और एक आज की और सबसे बड़ी एक खबर और है. Someone else is also going to join us. मुझे पता है जिनका आप सबको बेसब्री से इंतजार है. So our very own, very beautiful person, charming, dashing, Mr. Yashpal sir is joining us, our founder, our chairman. So can we have Yashpal sir on screen? नमस्कार सर. नमस्कार नमस्कार. कैसे हैं भाई सौरभ? मैं अच्छा हूं सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल अच्छा है. वो मैं तो देख रहा हूँ फुल बूम में हो भाई, कल से देख रहा हूँ. कभी गा रहे हो, कभी क्या मस्ती में कर रहे हो, एंकरिंग विद फ्लो एंड विद रिलैक्सनेस. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर, थैंक यू सर. सर कैसा लग रहा है, आज दूसरा दिन है हमारे फेस्टिवल का? कैसा लग रहा है तो बता नहीं सकता, क्योंकि 2:30 बजे से उठा हुआ हूँ. ओहो. हाँ, प्रतिभा और हम 2:30 बजे ही उठ गए, उसके बाद नींद ही नहीं आ रही. और दूसरा, क्योंकि मैंने सच बताऊं, मैंने कल की कुछ फिल्में दोबारा देखी रात को, सुबह, सॉरी. एंड क्योंकि वो इतनी अच्छी थी, मुझे लगा कि मैं कुछ मिस ना कर गया हूँ कल सबटाइटल्स के थ्रू. तो मैंने आज दोबारा देखी 3-4 फिल्में, तो मजा आया. एंड रियली गुड चॉइस. जी. तो सर आज आपको क्या उम्मीद है, आज दिन में आप क्या सोच रहे हैं, आपका क्या दिन भर का प्लान है? आप फिल्में देखने वाले हैं कि कैसे, क्या आपने प्लान किया? मैंने 3 दिन और 3 रात बिफ को समर्पित की हुई है. सारी दुनिया के काम धाम छोड़ करके मैं इसी में लगा हूँ, यही फिल्में देख रहा हूँ, यही कमीज पहन के तैयार होकर बैठा रहता हूँ. पता नहीं कब सौरभ बुला ले और मुझे आना पड़ता है. जी सर. और कब मेरे प्यारे प्यारे दोस्त जो मैं देख रहा हूँ, चाहे वो महेंद्र सिंह लूथरा हो, चाहे वो इतनी सारी लंबी लिस्ट है नीचे, अल्पना सुहासिनी, सोनी सीलन, श्वेता पड्डा जो कल भी थी, अल्पना सुहासिनी, वसुंधरा, गौरी वानखेड़े, एंड बहुत लंबी लिस्ट है जो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे और अभी देख रहे हैं, फिल्मों का भी इंतजार कर रहे हैं. जी सर. जी. तो सर आप मतलब आज सुबह आपने सोचा था कि आज आप पूरी तैयारी से हम लोग फिल्म देखेंगे. और एक चीज और है सर, आई गेस हमारी एक होस्ट और हैं, शी इज गोइंग टू जॉइन अस. तो हम क्या उनको अंदर ले सकते हैं? प्लीज पॉसिबल? प्लीज. ओके सर. ओके. सो कैन वी हैव पल्लवी ऑन स्क्रीन प्लीज? पल्लवी का शायद कोई टेक्निकल इशू चल. हाँ जी आ गई. सर आई जस्ट वांट टू आस्क कि सर आपने बहुत सारे फेस्टिवल्स देखे हैं और बहुत सारे फेस्टिवल्स में आपकी फिल्म्स भी गई हैं. आप
बहुत अवार्ड्स मिले। आपको इस फेस्टिवल में और उन फेस्टिवल्स में क्या क्या लग रहा है, कुछ हम लोग कुछ डिफरेंट कर पा रहे हैं? जैसा आपसे मेरी बात हुई थी तो आपने कहा था कि आप चाहते हैं कि हर कोने से देश के फिल्में आए, खासतौर से जो रीजनल फिल्में हैं, और जहां से, जैसे हमने कल कुकली एक फिल्म देखी जो उड़ीसा के बहुत ही छोटे से गांव से आई थी, और शायद संथाली आदिवासियों ने वो फिल्म बनाई थी। तो सर, आपको ये चीज शुरू से ही दिमाग में था, और मुझे लग रहा है कि आपको क्या लग रहा है, हम लोग उसमें कुछ हद तक सफल हुए हैं इस बार? हमारे पास वहां से भी फिल्में आई हैं। नहीं सौरभ, कुछ हद तक नहीं, मैं तो 100% सफलता मानता हूँ इस बात को, क्योंकि इतनी सारी फिल्में आना, डिफरेंट काइंड, डिफरेंट रीजंस, और हर जगह से फिल्में आई हैं, कोने कोने से, इटली हो, ब्राजील हो, कोलंबिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो, हर जगह से फिल्में आई हैं। इंडिया के भी कॉर्नर, साउथ से लेकर नॉर्थ ईस्ट से लेकर के, और हर तरह की, हर भाषा की फिल्में आई हैं। सो ये कुछ छोटी बात नहीं है। मैंने, यू आर राइट, बहुत सारे फेस्टिवल किए हैं और करवाए भी हैं। एक फेस्टिवल तो हरियाणा का ऐसा है जो बहुत अच्छे लेवल पे काफी सेलिब्रिटीज को बुला करके 4-4 दिन हमने होस्ट किया है। तो तब लेकिन ऐसे बैठ के होस्ट नहीं होता था, स्टेज पे खड़े होकर के माइक के सामने होस्टिंग होती थी। तो उसमें 4 दिन लगातार, मुझे याद है 4-4 दिन, 3 बार कर चुके हम, तो 3-4 दिन लगातार हम स्टेज पे खड़े होकर के फिल्मों को इंट्रोड्यूस करते थे, और हरियाणवी सिनेमा के बारे में और वर्ल्ड सिनेमा के बारे में बातचीत करते थे। बहुत सारे सेलिब्रिटीज यहाँ से आते थे, बॉम्बे से, उनके साथ डिस्कशन होती थी। और दर्शकों की रुचि शॉर्ट फिल्म की तरफ और फिल्म सिनेमा की तरफ और अच्छे सिनेमा की तरफ, मैं कल भी ये बात कर रहा था, ये बहुत जरूरी है। और ऑनलाइन, लेकिन ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल मैंने अभी तक कोई नहीं किया है, ये पहला एक्सपीरियंस है। एंड वी आर ग्रोइंग, वी आर लर्निंग। अगर कहीं भी कोई कमी रह जाती है, कोई गलती हो जाती है, टेक्निकल इश्यू होता है, तो न कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वी फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग एंड इट इज अवर फर्स्ट एक्सपीरियंस। सो जितना भी होगा उससे और ज्यादा सीखेंगे, और ज्यादा ग्रो करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा ठीक करने की कोशिश करेंगे। बट टचवुड, अभी तक जितना भी हुआ है हम 100% सक्सेसफुल रहे हैं, और तकरीबन 77,000 के आसपास अचीव कर लिया हमने ऑडियंस, जो कि आज की जो अपडेट बता रहा था सुबह। तो बहुत हमारे लिए गर्व की बात है, और पूरी टीम इसके लिए, नॉट ए सिंगल पर्सन, पूरी टीम उसकी जिम्मेवार है, क्योंकि बिफ की जो टीम है, जिस तरीके से कितने महीनों से लगातार दिन रात जाग करके इन्होंने काम किया है, प्लान किया है, ये किया वो किया है, जिसका रिजल्ट हम अब देख पा रहे हैं। सो थैंक्स टू ऑल। सर, आपने भी सर शॉर्ट फिल्म्स कुछ करी हैं, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा ना शॉर्ट फिल्म मेकर्स, क्योंकि हमारे इस फेस्टिवल में सारे शॉर्ट फिल्म मेकर्स आए हैं, तो इवेंट आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहता हूं शॉर्ट फिल्म मेकर्स के लिए भी आप कुछ कहें, बिकॉज आप भी उन फिल्मों का हिस्सा रहे हैं, तो आपके अपने अनुभव भी हैं शॉर्ट फिल्म्स के, और थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिल जाए सब फिल्म मेकर्स को कि आगे और बेहतर फिल्में बनाते रहें। और शॉर्ट फिल्मों का सर, सर, और भविष्य किस रूप में आप देख रहे हैं, कि मतलब आगे आने वाले में क्या ये एक पैरेलल सिनेमा के पैरेलल एक छोटी सी इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है शॉर्ट फिल्म्स की, कि आगे चल के जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनको रिटर्न्स भी आने अच्छे लेवल पे शुरू हो जाए, एंड कैन इट बी अ ह्यूज मार्केट फॉर फिल्म मेकर्स? तो क्या लगता है सौरभ, शॉर्ट फिल्म जो है वो सिनेमा में एक रिवोल्यूशन है, क्रांति है, क्योंकि हर कोई बंदा मेन स्ट्रीम सिनेमा में जाकर काम नहीं कर सकता है, या प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, चाहे वो आर्थिक रूप से कह लो, या सामाजिक रूप से कह लो, पारिवारिक रूप से कह लो, कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता घर से बाहर निकलना। लेकिन शॉर्ट फिल्म ने एक ऐसा मंच दिया है, एक ऐसी जगह दी है, और ऐसी पॉसिबिलिटीज निकल के आई हैं कि लोग अपने टैलेंट को और अपने जो आर्थिक स्थिति है उसके अनुसार काम कर सकता है, उसी प्रकार का कोई आइडिया चुन सकता है, उसी प्रकार से, जिसे कई लोग मैं देखता हूं बजट नहीं होता है तो कोई स्टोरी लिफ्ट के अंदर ही चल रही है, और कमाल की करते मैंने देखे हैं, और कोई सिर्फ एक कमरे में चलती है, कोई सिर्फ एक रसोई में चल रहा है, कोई इतने कम बजट में इतने कम जगहों पर करके लोगों ने खेला है, और कईयों ने उस हिसाब से स्टोरी बनाई है, बजट के हिसाब से, और कईयों ने लोकेशन के हिसाब से स्टोरीज बनाई है। जैसे कुकरी फिल्म का एग्जांपल ले लो, मैं
हैरान हूं बिना प्रोफेशनल एक्टर्स के, कमर्शियल एक्टर्स के, और आइडिया स्ट्रॉन्ग है। इतनी इतनी चोट यहाँ मारी है उस फिल्म ने कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मैं बयान करूं विदाउट सेइंग एनीथिंग दैट लिटिल गर्ल। और जो डायरेक्टर है उसने इतना कुछ बता दिया है सिर्फ विजुअल के थ्रू। और या वो अपनी फिल्म थी बैम्बू बैलेट्स, उस फिल्म ने भी कितना कुछ बता दिया है पर्यावरण को लेकर के, और उस बच्ची के थ्रू और अपने संगीत के थ्रू। और देखिए आप, बम्बू के साथ ही संगीत बज रहा है और उसी के साथ इंस्ट्रूमेंट बनाए हुए हैं, कितना रियल लगता है। और आज ही सुबह मैंने दोबारा देखी फिल्म दोनों ये, और भी डिफेंसलेस भी और बंगाली फिल्म भी और एक शॉर्ट फिल्म भी। मैं हैरान हूँ, यू वर राइट, मैं कल समझा नहीं क्योंकि मैं उस फिल्म को समझ नहीं पाया था। वो जो डोमेस्टिक वायलेंस वाली एक मोबाइल शॉर्ट फिल्म है जिसमें व्यक्तियों के चेहरे नहीं है, बट इतनी स्ट्रॉन्ग इमेजेस हैं सौरभ, यू वर राइट के ऐसा सिनेमा हमें कहाँ देखने को मिलेगा। सो दिस इज द पावर ऑफ शॉर्ट फिल्म, ये शॉर्ट फिल्म का है। And you are also right, and what I'm saying, I'm also right. What short film is a revolution in this world of cinema. तो यानी कि सर बहुत सारे जो हमारे यंग फिल्म मेकर्स आ रहे हैं और जो बहुत प्लानिंग कर रहे हैं नेक्स्ट, तो ये एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। ये जो दौर चल रहा है, खासतौर से जो ऑनलाइन जो दौर चल रहा है, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यंग फिल्म मेकर्स के लिए, अपना टैलेंट दिखाने के लिए, यंग एक्टर्स के लिए, और पूरे प्रोडक्ट। मतलब अब एक और अच्छी चीज सर ये हुई है कि कोई कहीं भी बैठ के फिल्में बना सकता है और दुनिया उसको देख सकती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जी, और सर तो टेक्नोलॉजी सर सब जगह पहुंच गई है, द एडिटिंग सेटअप, द कैमरा, एवरीथिंग इज अवेलेबल एवरीवेयर। तो पहले की तरह नहीं रहा कि खाली मुंबई में ही सब कुछ था। बिल्कुल, अब तो मोबाइल से ही सिनेमा बनने लग गया है, जो आप वी कैन सी इन आवर कंपटीशन आल्सो। मोबाइल सबके हाथ में सिनेमा है, फिल्म मेकर तो हाथ में ही है हमारा पूरा फिल्म मेकिंग। तो इसीलिए इतना आसान हो गया है आज। पहले बट जब रील चलती थी ये नहीं था, डिजिटल नहीं हुआ था सिनेमा। मुझे याद है आई वॉज द फर्स्ट, मैं प्रत्यक्ष रहा हूँ जब डिजिटल सिनेमा की शुरुआत हुई इंडिया के अंदर। शेखर कपूर लेकर आए थे 5D कैमरा, एंड 5D कैमरा इंट्रोड्यूस किया था। दैट वाज द फर्स्ट रिवोल्यूशन इन दिस डिजिटल सिनेमा। और उन्होंने 10 फिल्में प्रोड्यूस की थी उस 5D से, छोटे छोटे बजट की, जिसमें से एक फिल्म का हिस्सा मैं भी था, जिसका नाम था उर्फ प्रोफेसर, मनोज पाहवा और मैं। एंड दैट वाज ब्रिलियंट फिल्म मेड बाय पंकज अडवाणी। अभी वो इस दुनिया में नहीं है, बड़ी जल्दी उम्र में ही उनकी डेथ हो गई। ही वाज द डायरेक्टर, एंड बहुत अच्छी फिल्म बनी थी और उससे कई डायरेक्टर और एक्टर और सब कुछ एक क्रांति आई थी। उसके बाद धीरे धीरे कैमरा भी डेवलप हुए, रेड आया, ये आया और कई सारी चीजें आई। बट दैट वाज द फर्स्ट थिंग आई नो व्हेन आई केम टू बॉम्बे। उस समय की बात है ये जी। सर आपकी भी सर, आपने पूरा ये, मतलब मुझे लग रहा है कि ये पूरा रेवोल्यूशन आप अपनी आंखों के सामने ही आपने देखा है कि आपने जब आप शेखर कपूर सर के साथ आए, 5D कैमरा आपने जैसा कि बताया उसी समय आया, तो ये पूरी क्रांति तो सर आपके सामने ही हुई है। आई मीन ये पूरी जर्नी आप एज ए व्यूअर आपने देखी है। तो सर कंटेंट भी बहुत चेंज हुआ है, मतलब उसमें आप क्या कहते हैं कि जैसे राजा हरिश्चंद्र के ऊपर जब पहली फिल्म बनी थी और तब से अब तक सेक्रेड गेम्स, और अभी रिसेंट में आपकी सीरीज आई परिवार, और अभी तो आपको क्या कंटेंट का सर बहुत स्कोप हो गया है, बहुत बड़ा कंटेंट हो गया है। और क्या इंडियन ऑडियंस के लिए कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि एकदम से आ गई, हम शायद उसके लिए अभी तैयार नहीं है, ऐसा नहीं? मोनोटोनी जब होती है, कभी भी एक रूल है, प्रकृति का नियम है, मोनोटोनस लाइफ या मोनोटोनी जब भी होती है तो व्यक्ति उसको तोड़ता है। तो वो जो राजेंद्र कुमार के गाने और वो जो चल रही थी वो टूटा, मोनोटोनी खत्म हुई। फिर अमिताभ बच्चन का एक आया, फिर वो काला पत्थर, जंजीर, दीवार, फिर वो मोनोटोनी टूटी, फिर कुछ और आया, फिर कुछ और आया, धीरे धीरे डेवलप होता गया सिनेमा। और फिर अल्टीमेटली जिसको हम रियलिस्टिक सिनेमा या रियल सिनेमा कहते हैं,
वो शुरू हुआ। उसमें भी मैं शेखर कपूर का बहुत बड़ा हाथ मानता हूँ, बैंडिट फिल्म का, राम गोपाल वर्मा का सत्या फिल्म से, भेजा फ्राई, वेडनेसडे और लेकर के ऐसी, और अब तो अनुभव सिन्हा की फिल्में या सुजीत सरकार की फिल्में या अनुराग कश्यप की फिल्में, ये सारा सिनेमा एक इस टाइप का सिनेमा है जो आम आदमी का सिनेमा हम बोल सकते हैं इसको। जी जी। तो मैं इसका प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ। शूल फिल्म मैंने की थी, शुरुआत था मेरा, बॉम्बे में शुरुआत थी। तो शूल फिल्म में अनुराग कश्यप वाज एज ए राइटर, सौरभ शुक्ला एंड अनुराग कश्यप, सो वहाँ ही उसी से मुलाकात हुई थी। एट दैट टाइम ही वाज नथिंग, ही वाज जस्ट अ स्ट्रगलर। तो राइटिंग कर रहे थे और वो कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे कि कैसे कहाँ काम करना है, क्या करना है। सो मैंने अपनी आंखों से सिनेमा को बदलते हुए देखा है, और वेब सीरीज में बदलते हुए तो आप सब लोगों ने, सबने देखा है सिनेमा को वेब सीरीज में, ओटीटी प्लेटफॉर्म में। सो यू आर राइट, शॉर्ट्स फिल्म से और जो ये सेक्रेड गेम और आपने नाम लिए उसके वेब सीरीज जो है, ये क्रांति है। बस कितना है, जैसे कि सोशल मीडिया है एक क्रांति है, मोबाइल है क्रांति है, हम इसका कैसे यूज करेंगे पॉजिटिवली नेगेटिवली, दैट इज अप टू अस। यस सर। सर आपकी फिल्म भी अभी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही रिलीज हुई है, दास कैपिटल, तो मुझे लग रहा है आपको इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, ना सिर्फ फिल्म बनाने से लेकर के और फिल्म को दर्शकों तक लाने के लिए भी आप लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही लाए हैं। तो वो कैसा रिस्पॉन्स, मतलब किस तरह से, क्या मतलब ये बहुत आसान हो गया है क्या अब दर्शकों तक पहुंचना? ऑफ है क्या? सॉरी, मैं सवाल हाँ, सुन नहीं पाया, आवाज नहीं आ रही थी। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि अभी दास कैपिटल सर आपकी फिल्म रिलीज हुई, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे cinemapreneur.com पे आपकी फिल्म रिलीज हुई, तो आपको लगता है कि सर ये ओटीटी प्लेटफॉर्म से फिल्म को रिलीज करना इजी हुआ है प्रोड्यूसर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, या पहले वाला माध्यम ज्यादा अच्छा था, या दोनों की ही जरूरत है सिनेमा को? नहीं सौरभ, ये तो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म ने एक नई दुनिया कायम हुई है, और सिनेमा पब्लिक तक पहुंचना आसान हो गया है, और आम पब्लिक तक, हर किसी के घर में, बाथरूम में, किचन में, बस में, गाड़ी में, हर जगह सिनेमा आपके पास है, सिनेमा हॉल। तो एक इजी और तो हुआ है मामला, और आम आदमी तक पहुंचा है। जो सिनेमा बन जाता था लेकिन रिलीज नहीं हो पाता था सिनेमा हॉल में, एक उनका एक छत्र राज्य, कुछ ही प्रोडक्शन है। तो मुझे लगता है कि ये आम सिनेमा फिल्म मेकर के लिए और आम एक्टर के लिए, इवन डायरेक्टर के लिए, राइटर के लिए, कैमरामैन के लिए, हर किसी के लिए एक क्रांति हुई है, और उनके लिए बहुत अच्छा अपना टैलेंट दिखाने का स्टेज, मंच जिसको कह सकते हैं, वो आया है ओटीटी के रूप में। जी सर। और सर आप अभी जैसे आप एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं, आपकी फिल्म एक एज ए डायरेक्टर, अब आपकी फिल्म आपने कल बताया था कि कंप्लीट हो गई है, तो दादा लक्ष्मी, क्या आप उसको भी प्लान कर रहे हैं कि, और थोड़ा सा उस फिल्म के बारे में भी बताएं, और ये भी बताएं कि क्या आप उसको भी ऑनलाइन लाना चाहते हैं, ऐसा कुछ चल रहा है आपके टीम के साथ? आपका जो जहां मेरा पैसा पूरा हो जाए वहीं ले आऊंगा। लेकिन क्योंकि वो सिनेमा ऐसा बना है और हमने उस तरीके से बनाया है, बिल्कुल अर्दी लुक है उसका, बिल्कुल मटियाला, और अच्छे कैमरा यूज हुए हैं, और अच्छे मिक्सिंग हुई है, अच्छा म्यूजिक हुआ है, सब कुछ मैं बॉम्बे के टेक्निकल जो जितना भी काम है बॉम्बे में किया है। तो मेरी बड़ी दिली इच्छा है कि मैं उसको सिनेमा हॉल में रिलीज करूं। प्रोड्यूसर से भी हमारी बात रहती है, मेरे जो कुछ 2-4 मेन लोग हैं हमारी फिल्म में, जो जिनसे हम डिस्कस करते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सबका यही मानना है कि वी विल वेट टिल मार्च अप्रैल के सिनेमा हॉल खुल जाएं, और ये जो वैक्सीन की जो राजनीति है वो खत्म हो जाए, और वैक्सीन अगर आ जाए और वाकई में पब्लिक को विश्वास हो जाए कि अब कोरोना खत्म हो चुका है, अब हम जा सकते हैं फिल्म हॉल में। अभी हम कोरोना के साथ जी रहे हैं, हम बिल्कुल चाहे शादी में जाएं, चाहे मार्केट में जाएं, कहीं भी जाएं, कहीं भी कोई भी गैदरिंग होती है, कुछ भी होता है, हम अभी
अभी कोरोना के साथ जीना सीखा है हमने, अभी कोरोना के बगैर नहीं। तो जब कोरोना के बगैर हो जाएगा तो यस, मुझे लगता है कि मार्च अप्रैल तक वेट करना चाहिए। अगर सिनेमा हॉल खुलते हैं, ऑडियंस आती है, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट विद न्यू पब्लिसिटी, न्यू काइंड ऑफ पब्लिसिटी इन माय माइंड। जो मेरे दिमाग में है कि मैं क्या करूंगा, वो अलग से है। तो आई विल वेट, अदरवाइज मरता क्या न करता, फिर ओटीटी पे जाऊंगा। सर, क्या थोड़ा सा दादा लक्ष्मी के बारे में आपको बता सकते हैं, इफ इट इज ओके, शेयर कर सकते हैं? यस यस, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। मैंने पंडित लक्ष्मी चंद एक ऐसे शख्स हैं जो 1901 में पैदा हुए। कोई कहता है 1903 में पैदा हुए, कोई कहता है 1901 में, लेकिन मैं 1901 मान के चल रहा हूँ, क्योंकि उन पे 1945 में उनकी डेथ हो गई थी। तो इस हिसाब से कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी जब उनकी डेथ हुई। तो उनका जो जीवन रहा है बहुत ही कमाल का, इंटरेस्टिंग रहा है, जो कि स्ट्रगल से भरा हुआ और संगीत के लिए, गीत के लिए मतलब जान देने वाला। मतलब और स्टेज 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 सॉन्ग और भजन कीर्तन, और ये जो उसका ख्वाब हो जिस तरह का, और उस तरीके की गायकी ऐसी थी। और वो कभी स्कूल नहीं गया सौरभ, एंड हैरानी की बात है, बिना स्कूल जाए उसने दुनिया भर का अध्यात्म, हम उसकी तुलना कबीरदास, सूरदास, मीराबाई, शेक्सपियर, इन लोगों से, उनके नाम है, उनके गंधर्व पुरुष, भविष्यवक्ता, सूर्य कवि, उसके इतने नाम हैं उन्होंने लोगों ने, कि वो एक अद्वितीय पुरुष कहे जा सकते हैं कला की दुनिया में। उन जैसा कोई था नहीं, उन जैसी गायकी, उन जैसी राइटिंग कोई उसकी टक्कर का नहीं था। हालांकि बहुत अच्छे अच्छे राइटर और भी रहे हैं, मैं जाट मेहर सिंह हो, चाहे मांगे राम शर्मा हो, या हमारे धनपत जी हो, दयाचंद माइना हो, मुंशीराम जांडली वाले हो, ऐसे कई नाम हैं पुराने जो उनके समकक्ष थे, बाजे भगत, बहुत सारे लोग रहे हैं। लेकिन इन सब के गुरु के रूप में जो उभर के निकले थे वो पंडित लक्ष्मीचंद थे। और वो घर से भागते रहते थे बचपन से ही सांग देखने के लिए, और 15-15 दिन नहीं आते थे, वो सांग देखते थे, कहीं भूखे सो जाते थे, ऐसे ऐसे, और बड़ी कठिनाई से मीलों दूर चल के पैदल वो सांग देखने जाते थे। और किस तरीके से उन्होंने गुरु मिला, फिर उनके साथ गाना सीखा, अध्यात्मवाद सीखा, फिर किस तरीके से सोहनलाल मानसिंह मिले, फिर सोहनलाल मिले, फिर सोहनलाल के ग्रुप में उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि किसी ने जलन के मारे, इतना अच्छा गाते थे, जलन के मारे उनको पारा खिला दिया, सिंदूर खिला दिया, तो वो उनकी आवाज चली गई। फिर वो तड़प रहे, आत्महत्या की कोशिश की, ये वो बहुत कुछ उनकी, फिर अचानक खून की उल्टी के साथ उनकी आवाज वापस आई। तो इतना सब कुछ, फिर उन्होंने अपना ग्रुप खोला उनके टक्कर में, और फिर छा गए दुनिया के ऊपर। और फिर किसी ने बोला कि ये बेकार के गाना, जिसको अगर मैं बोलूं कि क्या बोलते हैं इसको, श्रृंगार रस को उस वक्त वल्गैरिटी मानी जाती थी, इतना वो था, रिजर्व था समाज। तो उन्होंने फिर अध्यात्मवाद की तरफ गए। 2 साल तक कुछ पंडितों से, 2 पंडितों से, टीकाराम और टेकचंद, क्या मैं नाम गलत नहीं हो तो, उनके साथ मिलकर के उनका सुन करके ज्ञान लिया, क्योंकि पढ़ नहीं सकते थे। 2 साल तक तपस्या की तरह। और फिर उसके बाद उन्होंने ब्रह्म ज्ञान के रूप में दुनिया भर को अध्यात्मवाद का पाठ पढ़ाया और सिखाया, और जो लिखा, जो गाया, उसकी तुलना अगर मेरी फिल्म देखेंगे उसमें आप देख पाएंगे, जो गाने हैं जिस तरीके के। एंड थैंक्स टू उत्तम सिंह जी, थैंक्स टू राजू मान जी, राजू मान जी ने लिखा, उत्तम सिंह जी ने म्यूजिक किया। थैंक्स टू रविंद्र राजावत जी, जिन्होंने प्रोड्यूस की फिल्म, पहले प्रोड्यूसर वही रहे, दूसरा मैं रहा। और फिर थैंक्स टू रामपाल बल्हारा जी, और बहुत लंबी चौड़ी टीम है, लेकिन ये सब सहयोग रहा है लोगों का। और ये इस तरीके से, ये था मेरी फिल्म के बारे में। सर, आपने इसमें मुख्य किरदार किया, तो आपको, मुझे लग रहा है अच्छी खासी आपने इसमें, आपको कितनी तैयारी करनी पड़ी, कितना आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी ये किरदार को जीने में? सौरभ, मैं 5 साल से जी रहा हूँ इसको।
और 1916 हाँ 2016 से मैं जी रहा हूँ, जब से सोचा था, क्योंकि मैं दिन रात सोते बैठते उठते खाते पीते मैं इसी के साथ जिया हूँ और किताबें पढ़ी हैं इनके बारे में। मेरी अलमारी भरी पड़ी है इनके रिसर्च वर्क से और इनके पेपर्स जो पीएचडी जिन्होंने किए उनके पेपर से, और किताबें जो लिखी हैं लोगों ने उनके बारे में, और उनकी रागनियां सुन करके दिन रात मैं कभी गाड़ी में हूं तो गाड़ी में सोते सोते भी मैं उनकी रागनियां सुनता रहता था कि उन्होंने क्या लिखा क्या गाया। तो उस तरीके से मैं इसको ये नहीं मानता कि मैंने आज एक दिन में फटाफट मैंने तैयारी कर ली, नहीं, इसकी तैयारी अंदर तक घुस चुका था ये मेरे, और मैं सिर्फ कपड़े पहनता था और मैं आ जाता था, और मैंने उसी तरीके से ही किया है। लेकिन सौरभ मैं बता दूं, मेरा मेन रोल जरूर है, लेकिन जो अभी फिल्म आ रही है मेरी उसमें मेरा मेन रोल नहीं है, क्योंकि ये पार्ट वन है। इसकी यंग एज तक की कहानी है, 22 साल तक की। तो उसमें एक बच्चा है 10 साल का, योगेश वत्स, जिसने इसके बच्चे का रोल किया है, और दूसरा हितेश शर्मा है जिसने यंग का रोल किया है। सो दे आर द हीरो ऑफ द मुझे आवाज नहीं आ रही है सर की। हेलो सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ ओके। सर अभी रिसेंट में मूसा फिल्म का जो आपकी फिल्म आने वाली मूसो जी, थोड़ा सा सर उसके बारे में कुछ प्रकाश डालें उस पे कि फिल्म किस बारे में है और हम उसमें क्या उम्मीद कर सकते हैं कि क्या कहानी है। सौरभ कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ऑडियंस जो फिल्म इसके बाद सर फिल्म शुरू करने वाले हैं क्योंकि अच्छा जी जी सर, महेंद्र कुमार लूथरा जी का मैसेज आया है, वेटिंग फॉर लक्ष्मी चंद जी। हाँ, और अल्पना जी ने लिखा है कि दादा लक्ष्मी जी, अल्पना जी ने लिखा है कि दादा लक्ष्मी फिल्म इतिहास रचेगी सिनेमा में। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत ही प्यारे लोग हैं जो इनका हमेशा मेरे लिए पॉजिटिव एनर्जी रहती है। पूरे हरियाणा में बहुत लोग हैं जो हमेशा यही इंतजार कर रहे हैं, और मैं बस दावे के साथ इतना कह सकता हूं कि आपके इंतजार को और आपकी आशाओं को मैं पूरा सम्मान देते हुए फिल्म बनाऊंगा। आपको गर्व होगा मुझ पर कि हाँ अच्छी फिल्म है, यही है। हाँ, जहां तक मूसो की बात है, मूसो एक फिल्म है जिसमें श्वेता पड्डा, जो कल एंकरिंग कर रही थी हमारी कुलीग इसकी डिश की, वो और मैं हैं, और राजेंद्र गुप्ता हैं, ब्रिजेंद्र काला हैं, और इश्तियाक हैं जो बहुत कमाल के एक्टर हैं, रवि गोसाई हैं, और अनुपम श्याम है। बहुत अच्छी टीम है एक्टरों की। रवि शाह है जो कि प्रदीप पंडित हैं, दीपांकर प्रकाश है जयपुर के, उन्होंने डायरेक्ट की है, उनकी पहली फीचर फिल्म है। और ये एक ऐसी फिल्म है जिसका जो नॉवल है आज से 100 साल पहले लिखा गया था, और उस वक्त भी ऐसे ही एक बीमारी हुई थी सौरभ, जो कि 1920 में लिखा गया। उस बीमारी के बाद का नाटक है, नॉवल है ये, और इसको नोबेल प्राइज मिला था जी। जॉन बेकेट राइटर में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जॉन बेकेट राइटर हैं इसके, और उन्होंने ये नॉवल लिखा था। उनको इस नॉवल के लिए नोबेल प्राइज मिला था उस साल का, एंड पूरी दुनिया का जो सबसे बेस्ट प्राइज है राइटिंग के लिए। और उस पर नॉवल से फिर नाटक लिखा गया, और उस नाटक को स्टेज पर बहुत बार खेला गया, और उस पर 2-3 बार हॉलीवुड में और इंग्लिश में और अलग अलग भाषाओं में फिल्में बनी। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप वो फिल्में देखिए और हमारी फिल्म देखिए, आपको हमारी फिल्म में ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि वो ज्यादा अच्छी बनी है। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि इंग्लिश है तो अच्छी ही होगी। इंग्लिश में भी हमारे जैसे हिंदी की तरह बहुत सारे फिल्म मेकर ऐसे हैं जो ठीक है, बट अच्छी फिल्म बनी है। मैं दीपांकर प्रकाश को, चरण सिंह पथिक इसके जो डायलॉग राइटर और भाषा के जिसमें बहुत सहयोग किया है, चरण सिंह पथिक एक अच्छे नामी ग्रामी राइटर हैं, तो उन्होंने और बहुत सारी एक कमाल की टीम उन्होंने बनाई, और एक ही गांव के अंदर 13 या 14 दिन के अंदर पूरी फिल्म बना डाली सौरभ।
वाह सर। ये होता है देखिए प्रोड्यूसर का पैसा भी बचाना और ऐसी कहानी चुनना कि जल्दी छोटे कम एक्टरों में खत्म हो जाए और वो कमाल की फिल्म है, वो कमाल की फिल्म है, मतलब जी आप एक सेकंड भी बोर नहीं होंगे, मनोरंजक है, पूरी मनोरंजक है और मतलब मास्टरपीस तो है ही, क्योंकि नोबेल प्राइज का मिला हुआ है नोवेल को। तो जल्दी ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलेगी। ये मैं अभी कंफर्म नहीं कह सकता कि कौन से प्लेटफॉर्म पर, लेकिन 2-3 प्लेटफॉर्म में बात चल रही है और शीघ्र ही फाइनल हो जाएगा 1 महीने के अंदर। थैंक यू सो मच सर। आपसे आज सर लास्ट में कुछ दर्शकों के लिए कहना चाहते हैं, हम फिर फिल्म की तरफ बढ़ते हैं। हमारे दर्शकों को कोई आज के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, दर्शक भी सोच रहे होंगे यार कहाँ फिल्म देखने आए थे, कहाँ यशपाल जी को सुनना पड़ रहा है। नहीं तो सर, कोई ऐसा बात नहीं। नहीं, नहीं, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मेरा एक डायलॉग है दादा लक्ष्मी में कि हमको तानसेन की बजाय कानसेन होना ज्यादा जरूरी है, हमको सुनना और देखना ज्यादा जरूरी है। हम उत्तर देने के लिए सुनते हैं नहीं, हमको सुनने के लिए, वहन करने के लिए, ग्रैस्प करने के लिए, उसको जिंदगी में उतारने के लिए, कुछ सीखने के लिए सुनना बहुत जरूरी है। और जी सर। मेरा दर्शकों से, सारे दर्शकों से बस यही है कि सिनेमा है, हो सकता है टेक्निकल कुछ गड़बड़ हो जाए आवाज का या विजुअली, डोंट टेक इट अदरवाइज के यार क्या हो गया, वो हमारे हाथ में भी नहीं है, कौन चाहता है अपनी फिल्म खराब करना। सो प्लीज आप एक बार कंसंट्रेट करके ये सारी फिल्में देखिए और उसके बारे में रिव्यू दीजिए लिख करके हमको, या फेसबुक में या कहीं भी आप जहां भी देखते हैं कि हम इसका रिव्यू दे सकते हैं। अगर आपको खराब लगती है फिल्म तो खराब बताइए कि अरे बहुत बेकार फिल्म थी, कोई बात नहीं भाई, हमने नहीं बनाई। तो 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 आप प्लीज सिनेमा देखिए और इटालियन हो चाहे कोई भी हो, सबटाइटल्स है नीचे, सो आप प्लीज सिनेमा देखिए और उसका रिव्यू कीजिए, उसके बारे में बोलिए। अच्छा सिनेमा देखना, दिखाना और अच्छे दर्शक पैदा करना ही हमारा मेन मकसद है। सिनेमा के लिए ही हम आए हैं इस मंच पर और सिनेमा के लिए ही मैं इतनी देर से भौंक रहा हूँ। सिनेमा के लिए ही जी कल भी पूरा दिन सौरभ भाई बोले हैं और आज भी बोल रहे हैं। सिनेमा के लिए ही हमारा मकसद है, हमारी नीयत ही वही है। थैंक यू सो मच सर। तो आज हम सर BIFF लॉन्ग शॉर्ट फिल्म कैटेगरी सबसे पहले प्ले करने वाले हैं। तो मैं कौन फिल्मों सी के फिल्म नाम। कितने मिनट की भी होगी वो बताते रहना ताकि लोग रेडी रहे कि हाँ इतने मिनट की ये फिल्म है। जी सर, जी सर, जी सर। तो द वेरी फर्स्ट फिल्म जो आज सेकेंड डे BIFF लॉन्ग शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में हम प्ले करने वाले हैं, दैट इज लागिर, जो कि ड्यूरेशन है 22 मिनट 57 सेकेंड्स, फ्रॉम इंडिया एंड डायरेक्टेड बाय उत्कर्ष जाधव जी। हाँ मेरा सर स्क्रीन को, हटवा दो बेशक। हाँ हाँ, डायरेक्टेड बाय उत्कर्ष जाधव जी। कॉन्ग्रेचुलेशन उत्कर्ष जी। भाकड़, जिसका ड्यूरेशन है 20 मिनट्स 44 सेकेंड्स, फ्रॉम इंडिया, डायरेक्टेड बाय विजय महादेव माली जी। Congratulations, Vijay Mahadev Mali ji. With New Eyes, duration 25 minutes, from Greece, directed by George Leonard Knakis. And if I pronounce it wrong, I'm sorry. Solus, uh, duration is 20 minutes, from UK, that is United Kingdom. Uttarakhand nahi hai दोस्तों. Okay, directed by, I haven't got it. The Frightened President, 26 minutes 15 seconds, from USA, directed by Zekel Wagan and Marcos CFM. Congratulations to all these guys. Congratulations to all these films जो अब हम प्ले करने वाले हैं। तो द वेरी फर्स्ट फिल्म इज लागिर। तो लागिर इज अ फर्स्ट फिल्म फ्रॉम इंडिया, directed by Utkarsh Jadhav. Congratulations, Utkarsh ji, and I hope you are watching us. Can we have the film, please?
सुधीर, अरे तानीला बघितलीस का रे? नाही रे बाबा. कोणाच्या तानीला बघितलीस काय? नाही बा. ते गेल्यात तोंडच कळेल. काय यार, याचं रोजच आहे. आज लईच उशीर झाला बाई. आता काय माझं खरं नाही. त्याला काय होतंय, सांगायचं आज जरा जास्त काम होतं म्हणून. अहो पण माझा नवरा मला लय राग होतोय. नाहीतरी तुझा नवरा कधी सुट्टीत असतो की? हा? स्वतःच्या डोळ्यांनी बघितलं मी तुझी. अरे काय वापरतोय? अरे तुझं तुला तरी कळतंय काय? आज लई काम होतं मला, म्हणून तर आई घरी लवकर आल्या नव्हता. काम होतं? काय काम होतं ते माहितीये मला. अगं मी काय बघितलं माझ्या डोळ्याने तुला सांगू. झाला का तमाशा सुरू? त्याला थोडं जमून आलं जरा पडावं म्हणजे की याचा ठिकाणच सुरू. दाम्याच्याही तुम्हाला कितीदा सांगितलं याला व्यसनमुक्ती केंद्रात नेऊन घाला म्हणून. एखाद दिवस त्याच्याबरोबर तुम्ही पण जेलत जाऊन बसाल. मारून टाकीन हा एका दिवशी. ताने मुर्द्या काय केलं से? कुठं पडशील सापा? ताने ताने उठ ग, उठ उठ ताने ताने उठ ग, उठ की उठ. का मारलंस तिला? काय उत्तर द्यायची काय बाबा? काय सांगू सांग तिला? अरे काय काय म्या ठरवलंय काय? तानीला माहेरी धाडायचं, नाहीतर एक दिवस मारून टाकशील तिला. ए तुला काय करायचंय ते कर. आणि हे पितोय मी. धर. गावात उलटसुलट चर्चा आहे. कसली? तानीला जाऊन 3 महिने झालं. तुला आठवण येत नाही तिची? तिला घेऊन येऊया परत. कुठल्या तोंडाने आणायला जाऊ तिला? हे बघ,
तू तिला नीट नांदवणार असशील तर म्या जातो तिला आणायला. ताने, मला माफ कर. हं? झालं गेलं ते सगळे विसरून जा. आपण नव्यानं संसार सुरू करू. आलो आलो. काय झालं का? अगं काय होतंय? काय बघतो बाबा, थांब. काय झालं ग? आता हे काय झालं म्हणायचं? ए बायानो, आवरा. चल चल, आता आपण दोघच जाऊया. का? हिला काय झालं म्हणायचं? एवढा मोठा झालायस आणि तुला एवढं बी कळ. काय? अरे तू बाप होणार आहेस, बाप. चल. अरे चल की. हा, आलो आलो आलो. काय झालं? तेच नव्ह. ठीक आहेस नव्ह?
आहे लई दिवस झाले गोष्ट सांगेन म्हणतो तू. अरे मग बोल की. अगं तानी 3-4 दिवस झालं रातच्याला लईच आवडत्या. चित्र आवाज काढून कुणी ओरडतच उठते अगं. अरे गरोदरपणात असं कुणाकुणाला होतंय. भीती वाटल्यागत होत्या, जीव घाबरल्यागत होतोय. काय काळजी करू नकोस, समद नीट होईल. चल. ताने काय करायचं ह्या पोरगीला? ताने ए ताने ताने अगं अशी का बसलीस एवढ्या रात्रीचं? अगं काय बोलतोय मी, ऐका येते का तुला? उठ, चल चल घरात. ताने हे ताने जेव की. आत्याबाई पोराचं नाव ठेवा आता. आमच्या सिद्धेश्वराला खेळण्या जो जो रे जो जो बाळा जो जो रे जो. पहिल्या दिवशी राज दरबारी आला वंशाला अत्रेय बाळ शिवाजी पहिला अवतारी. जो बाळा जो जो रे जो. हे ताने ताने अगं बाळ रडते ना मग. ताने काय करावं ह्या पोरगीला, ऐकायला बी येत नाही. काय झालं ग माझ्या बाळाला रडायला? काय झालं ओ ग तडी ओ माझं पिलू? काय झालं तुला? काय झालं ग? काय झालं? काय झालं? ललू नकोस ग बा माझ्या शान. काय झालं? चल आपण ऐकायला जाऊया. चल चल ग बाल माझ्या शान. ताने ए ताने ताने अगं बाळ केवढं रडायला बघ की. अगं घे की, अगं बाळाला घे की. अगं बाळ किती रडायला बघितलंस काय? अगं घे की. बघत का बसल्यास? अगं काय झालं? काय झालं? अगं अशी का करायला? घे की. काय झालं? काय झालं? अगं काय झालं? काय झालं? ओ
अर्धाम्या वहिनीची तब्येत कशी आहे रे आता? काय सांगू मर्दा, कशात लक्षच नसते तिचं. जेव्हा बघावं तेव्हा कसल्या तरी विचारतच असते. रात्रीची जाबडतच उठते. मी आणि आई लक्ष ठेवून हाय तिच्यावर. मला वाटतं तिला काहीतरी लागेल नाही. कुठल्या तर चांगल्या बाबाला दाखवून घ्या. हा अंध्या म्हणतोय ते बरोबरच आहे. अरे त्या महादाच्या बायकोला बी गरोदरपणात लागीर झालं होतं नदीकडचं. त्यांनी बी लय काय काय केलं, पण काय फरक पडला नाही बघ. शेवटी त्या राक्षीच्या बाबाला बोलून आणलं, तेव्हा कुठं समजून नीट झालं बघ. दाम्या, हे दाम्या, दाम्या, आता समज नीट होईल बघ. एवढं उतारे टाकलं नैवेद्य व्हायला, त्याचा काहीतरी उपयोग झाला म्हणायचा. वय रे वय, रखमा म्हणतच होती त्या भस्म्या बाबाचा उतारा लई असरदार आहे बघ. आणि तसंच झालं. आता तुझा संसार नीट होईल बघ रे बाबा. नाही लांबा माझ्यापासून, कुणी बी माझ्या जवळ येऊ नका. लांबा माझ्यापासून. अगं शांत हो, शांत हो आधी. कुणी बी माझ्या जवळ येऊ नका. आता लांबा. अगं पोराचा तर विचार कर की, पोरं घाबरेल. Hi there. I'm really sorry for the interruption, guys. Why not we'll just start the movie once again from where it is left. I guess there was something at the back end. Okay. So can we have the movie, please? होता है यार, बड़े बड़े फेस्टिवल्स में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं. बस वैसे ही कुछ हो गया इसके साथ. So that was Lagir from India, directed by Utkarsh Jadhav. So Utkarsh ji, congratulations. We're gonna play your film once again. I think बीच में रुक गई थी, तो हम दोबारा से उसको वहीं से शुरू करते हैं. If it is possible, तो can we start the film? Okay. So it will, I guess it will take some time. So. जवळ बी आणू नका. कुणी लावायचं नाही मला आपल्याला. लावायचं नाही. ताने, रडणं थांबव आधी आणि मला सांग काय झाले ते नीट.
आहे मा काय झालं? धाम्या बघितलंस रात्रीच्या वेळेला पोराला घेऊन कशी बाहेर बसले ते मला कळले हिला त्या राक्षीच्या बाबाला दाखवायला पाहिजे ताबडतोब तू जा ताबडतोब घेऊन ये मी काय म्हणतो तुम्ही जरा तू काय बी म्हणू नकोस तू जा मी इथलं सगळं सांभाळतो तू जा बरं बरोबर मी जातो लगेच Ladies and gentlemen, that was Lagir from India, directed by Utkarsh Jadhav. Congratulations, Utkarsh ji. आज आपकी फिल्म की स्क्रीनिंग फाइनली हो गई. The film is officially nominated in BIFF. और have you seen the film? ठीक है, थोड़े समय के लिए I get it. There was an interruption, and I'm really sorry for that. But I hope we can understand it. It's okay. You know, फिल्म में भी ब्रेक होता है, तो छोटा सा एक ब्रेक आ गया. That's okay. But the concept was, it was very different. And the way the director approached the story is quite good. And I just want to say कि आप और निराश नहीं होंगे because हमारी जो अगली फिल्म आने वाली है, that is भागकर from India, directed by Vijay Mahadev Mali ji. So we're gonna play the movie Bhagkar from India, directed by Vijay Mahadev Mali. So congratulations, Vijay Mahadev Mali ji. We are screening your film, and if you are watching us, please do comment.
मालकानं सकाळपासनं मला चांगलं धुतलं पुसलं ओवाळलं. एवढं सगळं करून मला हा कुठं घेऊन चाललाय तेच कळत नाही. 4 माणसांच्या समोर नेऊन मला वाटतं हा माझं कौतुकच करणार असेल. मालक माणूस म्हणून लय चांगला माणूस. जेवढा प्रेम करतो त्याच्यापेक्षा मानताळ प्रेम करतो. माझा पण लय विश्वास आहे माणसावर. तो माझा कधीच विश्वास करणार नाही. काय द्यायचं आहे का पैसे? हा द्यायचं आहे की. किती आलं तर द्यायचं आहे? 60 आलं तर द्यायचं. 60? का हो पाहुणं काय झालं? 60 आलं म्हणताय म्हटलं जरा बघावं तर बैल. हा एकदम 60 सांगताय म्हणजे ह्याला आणि 60 अरे कोण देणार? का काय झालं? आता काय झालं? अहो याच्या शेपटाला बटा आहे, पाठीवर भवरा आहे, शिवाय साई दाती झाले आणि पायात म्हटला 7 तर लक्ष्मी नाही. कोण देणार याला 60,000? वैर बाजी दिल का? याला आणि 60 हे जर लय झालं तर 20,000 होते. अहो पाहुणं काय चेष्टा करायला लागला असा का काय? अहो चेष्टा करायचं काय आहे त्यात? बाजा कोण दिल वैर याला 60? आता याला कोण 60 देईल? आता तुम्ही 20 म्हणताय तर 20. हा हे बघा कसं आहे, हे 20,000चं बैल आहे. पाहुणं हे बघा 20,000ला काय जमणार नाही बघा. असं म्हण. ठीक आहे चल रे बाबा बाजा. जाऊ दे पण दादा. काय इब्लीस आहे. माझा मालकावर किती मोठा विश्वास. मालक मला कधी विकलं असं वाटलंच नव्हतं. मालकाला अशी काय अडचण आली म्हणून मला विकतो या. आणि ह्यो माणूस शेपटाला बटा हाय, पाठीला भवरा हाय आणि पायात लक्ष्मी नाही म्हणतो. आता हे माझ्या पास बसण्या पलीकडचं आहे. माझ्या अंगावर जे काय आहे त्याच्यामुळे काय होतंय म्हणायचं हेच कळत नाही. ए बाबा देतोस का? 20च होते तर. पाहुणं मला माझा बैल द्यायचा नाही. आणि ते नव तुम्ही रकून लागून गेला माझ्या बैलाची किंमत करणार. बाजा सांग बाबा ह्याला आम्ही कोणती. अहो दर करावा तो फक्त बंडा हिडीनच. हा कळलं का? पाहुणं मला बैल द्यायचाच नाही. अहो ऐका तर बाजा काय बांधले रे? बंडाचा भाकरी आहे. भाकरीची शपथ घेऊन सांगतो तुझ्या बैलाची किंमत फक्त 20,000च होते. काय पाहुणं चेष्टा करताय? बाकी तुझी मर्जी. बघ बाबा चला. व्यवहार ठरला नाही हेच बेस झालं. मालकाला सोडायची माझी बिलकुलच इच्छा नाही. माझं तर ऐकतो.
काय बैल घेत आहे का? हो. सिंगल घेताय का डबल? सिंगल म्हणजे एक नाही, एकच पाहिजे. आता बैल घेणारच आहेस हा, तर मी काय म्हणतो, पायात लक्ष्मी असणार बैल. काय रे बाजा? तर लक्ष्मी असली पाहिजे. कसा आहे, जनावराच्या पायात जर का बटा असला, त्याच्या पायात जर का लक्ष्मी नसली, सगळ्या घरादाराचं वाटोळ होते. आता तुम्हाला सांगतो, जावणीला जनावर होऊन राहत नाही, घरात दूध दुभतं राहत नाही, आणि मालकाचं वाटोळ व्हायचं तसं होते. म्हणून म्हणतोय, पायात लक्ष्मी असणारं जनावर घ्या. काय रे बाज? तर त्याच्याशिवाय भलं होणारच नाही. तर मी काय म्हणतो, कितीपर्यंत घेणार आहे जनावर? 35-40 पर्यंत चालेल की. बाजा 35-40 पायात लक्ष्मी असणार, बाजारात बटा नसणार, असं जनावर मिळेल होय रे? पण दादा बरोबर आहे तुमचं, पण भला माणूस आहे, त्यांचं तेवढं द्या की जमलं. आता घेऊ भला माणूस, बाजारात जाऊन कुठं फसायला नको, तवा हे चांगलं जनावर घेऊन देणं आपलं कर्तव्य. काय म्हणतोस बाजा? भंडार किती जणांचं भलं केलं आम्हाला माहिती आहे की. काय म्हणतोय, द्या की ह्यांचं जमवून. जमूया, पण बाजा ह्यात काय बांधले? पण दादा भाकरीची शपथ घेऊन सांगतो, आजपर्यंत आम्ही लय जणांचं भलं केलं. आता पायात लक्ष्मी असणार असे एक जनावर आहे बरं का. पण कसं आहे, तुम्ही तेवढं 40वर अडून बसायचं नाही का बाजा? पण दादा 40वर अडून चालेल का? हा, अहो कसं आहे, पायात लक्ष्मी असणार जनावर 70-80 हजाराच्या आत काय येत नाही. काय रे बाजा? तर बंडादा बरोबर आहे, भला माणूस आहे. तू म्हणतो हे बी खरं आहे. आता भल्या माणसाचं भलं करायलाच पाहिजे. पण तुम्ही एक काम करायचं, ते जनावर मी तुम्हाला दाखवतो, ते बघायचं, खरं बिन बोलता यायचं. कसं? बंडादा तुम्ही म्हणेल तसं करायला तयार आहेत. कसं पाहुणं? चला. बैल देखणं दिसतंय, मार्क बी नाही. अरे बैल साईदाची झाली की. बघूया जरा जरा जमतोय का आता. बघा जरा काय होते, ठरतंय का. अरे काय बैल घेता काय? अरे बंडादात मारलीस म्हणले आता काय. बरं ते नव. ऐकू येतंय काय? शेजार पाचजार पोरी चांगल्या शाळेतनं चालल्यात, आणि तुमची पोर जिल्हा परिषदेच्या शाळेत. तुमच्याच्यानं कवाच काय व्हायचं नाही. लगीन झाल्यापासून ऐकत आलो या, यंदा पीक चांगलं नाही, पैशाची चणचण हाय, हे घेऊ नका ते घेऊ नका. अहो आता तरी त्या पोरगीला चांगल्या शाळेत घालायला जमते का बघा. आता बोला की, काय मुसक्या बांधल्यात काय? अगं आहे, गब्बस की. तू गप बसतीस? दे पटा पटा पटा. बाप तुझा नुसता मुसक्या बांधून बसलेला असतोय बघ. बोलायला लागलं की तोंड बंद. गिराय काय द्यायचंय का? अगं हे, अरे गिराय काय द्यायचंय का? पाहू, तुम्हाला सांगितलं नव, 60 आलं तर बैल देणार आहे, नाहीतर का माझा बैल द्यायचा नाही. बघितलंच बाजा, अरे ह्याला जनावरच एक. नाही तर तुम्ही म्हणताय तसं देऊ वय. बस सोने, बघितलंच कशी माणसं आहेत.
बाबा बैलाला बटा हाय म्हणजे काय हाय? अगं त्यासनी म्हणायचं आहे बैलाला बटा म्हणजे बैल लाभदायक नाही, बैलाच्या पायात लक्ष्मी नाही. काय सांगतात ते? सोन्यासारखं बैल म्हणजे यो सोन्या आणि तू सोने. का साठावरच अडून बसलाय? काय तर आहे म्हणूनच बैल विकाय आलाय ना. पाहुणे, ही माझी पोरगी सोनी. अहो लय हुशार आहे, तिला मोठ्या शाळेत घालायची आहे. अहो म्हणून 60,000चे नाही. आता तुम्ही सांगा, 60,000 मला नाही मिळालं तर हिला कसं मोठ्या शाळेत घालू? ते सगळं खरं आहे, पण कसा आहे, तुम्ही आम्हाला आपलंसं वाटतंय तोपर्यंत तुम्हाला सगळ्या अडचणी भासणारच, पैशाची चणचण जाणवणारच. कसा आहे, तुम्ही एक काम करा. काय? तुम्ही फक्त मनात आला किती बी होते, पण हे बैल मी देणार. बघा तुमच्या अडचणी सुटत्यात का नाही. काय रे बाजा? तर 100% खरं आहे. मालकासाठी मी अपशकुनी आहे. माझ्यामुळे मालकाला पैशाची चणचण भासते, होय का? पण माझ्या शेणामुतामुळे कष्टामुळे शेती पिकती, मालकाला मदत होती. हे बरं या माणसाच्या लक्षात येत नाही. मला बटा हाय म्हणून विकायला निघाले. वा रे वा, जर ह्यांच्या पोराबाळांच्या पायात बटा असता तर यांनी पोराबाळांना ऐकलं असतं का? मालकानं माझ्या पोटच्या पोराचा कसा भाग केला. मी त्यांच्या पूर्वीच्या शाळेसाठी उपयोगाला येत असेल तर विकू दे बाबा. मालकाचं माझ्यावर लय उपकार आहेत, ते तर कमी होतील. आणि माझं हे मनोगत मालकाला कुणी तर सांगितलं तर लय बरं होईल. बाजा ह्यात काय बांधलंय सर? बंडाता भाकरी आहे. पाहुणं, ह्या भाकरीची शपथ घेऊन सांग, मी तुमचं वाटोळ होऊ देणार नाही. काय रे बाजा? तर काय? पाहुणं, पोरीच्या शाळेचा प्रश्न आहे म्हणून 10,000 वाढवून दिल्या. अहो पर याच्यात काहीच होणार नाही. अरे अरे बाबा, हे जनावर आहे तोपर्यंत असंच होणार. ठेवू नकोस तुझ्याकडे. आपण एवढ्याला कसं होईल सांगा बघूया. अरे बाच्यावर आडून बसू नकोस. घरात काहीतरी सोनं नाणं असेल की. चल. मालकाला माझं मनोगत कुणी सांगितलं तर लय बरं होईल. पोरगीला चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळू दे, पोरगीचं कल्याण होऊ दे, ह्योच आशीर्वाद आहे माझा. बघा पाहुणे, हे असं गुन्हे जनावर बाजारात हुडकून सापडणार नाही बरं का. अहो ह्याच्या पायात लक्ष्मी आहे, लक्ष्मी. हे ज्याच्या घरात जाईल त्याचं भलंच होणार. काय रे बाजा? तर अहो ज्या जनावराच्या पायात लक्ष्मी असती असं जनावर 70-80 हजाराच्या आत काही मिळत नाही. काय रे बाजा? 70-80 हजाराच्या आत येतंय वय. हा कसा आहे, आता तुम्ही आपलंच वाटताय म्हणून मी तुम्हाला 65ला देतो. काय बाजा? बंडला आता 65 वर कशाला अडकून बसलायस? आता ह्यो भला माणूस हाय, अगदी देव माणूस आहे. आता ह्याला म्हणून मी 65ला नाही तर एक 60ला देतो. कसं 60ला चालल नवं दिलं तर? चालतंय की. घ्या, तुमचंच बैल आहे ते आता.
बाबा काय सोने? जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकून आजपर्यंत कोण डॉक्टर इंजिनियर झालं नाहीत काय? अगं अगं झाल्यात की कैक झाल्यात. मग या पैसे भरून शिकायच्या शाळा सरकारच्या आहेत का खाजगी? खाजगीच की सगळ्या शाळा या आधी होत्या का आत्ता चाल्यात? हा, आधी एवढ्या नव्हत्या पण आता लय प्याव फुटले या बघ. म्हणजे ज्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा जास्त होत्या म्हण की. होय होत्या. बाबा हा. पैसे भरून शाळा शिकल्यावर जास्त शान होते का अभ्यास करून शाळा शिकल्यावर? अगं सोने, अभ्यास केल्यावरच लय शान होतंय की. ही पैसे भरायची शाळा मला नकोच. हा का ग सोने? मी अभ्यास करीन आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळेतनं नंबर काढून दाखवीन. पण एक काम कर, आपलं बैल परत आण. माझ्यासाठी बैल विकलंस. जर बैलाला आजार पण झाला असतं तर तुम्हाला विकलास? अगं नाही सोने, तसं नाही. माझ्या पायात बटा असता, माझ्या पायात लक्ष्मी नसती तर तुम्हाला विकलं असतं. अगं अगं तुला कसं ऐकेन मी? अगं पोटचं पोर आहेस तू माझ्या. नाही अजिबात नाही, तसं होणार. असं नाही बोलायचं बघ लेकरा, असं नाही ग सोने. आपलं बैल परत आण. माझ्या आण आहे बघ तुला. अजिबात वाईट गाडीत पुढे बोलायचं नाही. काय काळजी करू नको मग. तू शिकून लय मोठी हो. अगे तुझ्यासाठी सगळं नका काळजी करू. तू म्हणतेस ना बैल आणायचा, चल आपण बैल परत आणू. वाईट वागाल काय बोलायचं नाही इथनं पुढे. नाही चल. माणूसच माणसाला फसवत. अरे याच्या परी निदान कुणाला फसवत तरी नाही. बाजा अरे भाकरी तेवढी सोड की आता. सोडू चाय